Hello students, how are you? I hope you will be doing better at your home and you are utilizing your time. Yesterday I just started the classes for you and I started with the first chapter, that was the life process. Okay, and I told you that spend the time with your family, also do the work, just help your mother, help your family members, and you have to develop one skill in this lockdown time. Means in this time you are getting a lot of in this lockdown you are getting a lot of time, so you can utilize, you can develop one skill in you, like as you can develop reading skill. Okay, and you can develop the any you can learn the instruments, the musical instrument you like, then you should develop one skill in this lockdown time, so can utilize the time, and with that you have to study also. Clear? So with this we are going to start the class, and yesterday I just discussed few topics of the live process with you. Clear? And I told you, if you are having any doubt, you can write down in the comment box. If you are subscribing this channel, please share and like, don't forget to like and share. Clear? And if you don't like, if you are not able to understand anything, please write down in the comment box, so that there should be the improvement in the next class. Okay, let's start the class. As usual, just started the class with a very motivational quote for you, very motivational thought for you. Then from today again I am having a very good motivational quote for you, that is, the harder you work, the more you live. Means if you are working very hard towards anything, for anything, like as if you are working hard for your studies, confirm है that you will live more. More live, what is the meaning of more live here? That whatever your life will be there, that will be fruitful. You can make your life fruitful, so that you can help to others also. Okay, and the parents should be proud on you. Clear? So that's why the harder you work, the more you live. Clear? Then let's start the session. Yesterday we discussed the life process. I told you the characteristic of the living organism. So many characteristics you must be knowing, but yesterday I told you about the metabolic process, what is metabolism and what is metabolic process. In that process I told you about the two process, that was the anabolic and catabolic, and I told you, if any living organism is there, like as bacteria we cannot see the bacteria with our naked eye. Clear? But the bacteria is also a living organism. Why we can consider the bacteria as a living organism? We cannot see them, but in the bacteria the metabolic process take place when it is outside the body also. And why we cannot consider the virus as a living organism? Because when the virus is present outside of the host body, it does not show any metabolic process. So this is the difference, that bacteria and virus both may or may not present in the host body, and they are present outside the body. Then why they are one is known as living and one is not known as living? Because the bacteria show metabolic process. And I told you about the movement, molecular movement or cellular movement. This is also a very important feature and very important characteristic of the living organism. Then we discussed about the life maintenance. How can we maintain the life? I took so many examples, so many objects. Clear? To make you understand how there is a need of to maintain them. That so same as our body should also should also require maintenance. So how can we maintain our body? By the life processes. So life processes are the processes those maintain our life. In the same sequence I told you about the nutrition. Then we were discussing about the autotrophs and heterotrophs. Actually there are different organisms on the earth. Means there is a diversity in the living organism. So the organism show the different mode of nutrition. They take the nutrition in a different way. Clear? By observing some example, some process, we will understand how the living organism just take the nutrition, how they show nutrition. So let's start the topic, the nutrition. I told you there are two type of nutrition, autotrophic and the heterotropic, means autotrophs and the heterotrophs. Then I told you that autotrophs means the organism those can
change those can convert the inorganic substances into the organic substances, means they can change the simple substances into the complex substances. Those organisms are known as autotrophs, and such type of nutrition is known as autotrophic nutrition. In this category, mostly the organism those are having chlorophyll pigment, means they can perform photosynthesis, they fall under this category. Clear? Without this such type of organism, we cannot survive on the earth. Our survival is not possible on the earth, means if their organisms are eliminated. Yesterday I told you, if we eliminate autotrophs, then our survival is typical. We cannot survive on the earth. Clear? Because directly or indirectly, every organism are dependent on the, they depend on the autotroph. They, clear? For their food, for everything they depend, directly or indirectly they depend on the autotrophs. Clear? So let's start the autotroph. Yesterday I told you, in the autotroph means we are going to study about what? Photosynthesis. Clear? I gave you the meaning of photosynthesis, then I told you what are the requirement of the photosynthesis. Sunlight is a very important part, important factor in the photosynthesis, then carbon dioxide, then water. How the plant get water? They get the water from the soil, they absorb the water from the soil, and minerals too. With the water, the plant also get minerals from the soil. Clear? And then they form what? They produce what? Sugar. Sugar means polysaccharide, like as you know that carbohydrate. Carbohydrate is what? A type of sugar, that is polysaccharide. And they release oxygen also, and because of the oxygen our environment get purified and we get the oxygen from the plants. Clear? So it is clear now. So what is photosynthesis? We are going ahead. In the photosynthesis, this is this is a chemical reaction of the photosynthesis. In this reaction, if you see, CO2, the requirement of the photosynthesis is CO2, then water, 6 CO2. This is a balanced chemical equation of the photosynthesis. CO2, then H2O, 6 CO2, 12 H2O. Then in the presence of sunlight, and what is required in the plant? In the chlorophyll pigment. Then they produce what? Glucose. Clear? And the storage of glucose is known as starch. Clear? What is starch? Storage form of the glucose is known as starch. Like as if you are having suppose you are having coins, 1 rupees coin, you are collecting 1 rupees coin, okay, then it become 100 rupees and you convert it in the 100 rupees note. So 1 rupee coin is what? Glucose, and the 100 rupee note is what? Starch. Clear? When you do require the money, you just break that money into different part, into different component. Clear? Same as the glucose is a unit of starch. Clear? In the plant, when the glucose is present in the more amount, they convert the glucose into the starch. Clear? And as I told you in the previous figure, that we get oxygen from the photosynthesis and water too. Clear? So this is about what? Chemical reaction of the photosynthesis. In this chemical reaction, we get to know that what are the requirement for the photosynthesis. CO2 they get from the air, water they get from the soil, chlorophyll pigment present itself in the plant, sunlight from the sun, and they develop these products. Clear? Now there is a question. You can just raise a question. Can the photosynthesis take place in the artificial light? Yes. The photosynthesis also take place in the artificial light. Like as there are so many ornamental plants. Ornamental plants means जो आपको मतलब आपके घर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप सजाने के काम में यूज़ करते हो, जैसे अपने रूम में रख लेते हैं, होटल्स वगैरह में देखा होगा, होटल्स के अंदर रख लेते हैं. तो दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन द आर्टिफिशियल लाइट आल्सो, बट देयर रेट इज़ वेरी स्लो. क्लियर? यू कैन नॉट से दैट सर बनियन का ट्री जो है हम अपने घर में लगा दें, उसको आर्टिफिशियल लाइट दें. देन द बायोमास उसका बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जो बायोमास उसका प्रोडक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है. दैट कैन नॉट फुलफिल इन द आर्टिफिशियल लाइट. क्लियर है? सो लाइट प्रोवाइड द एनर्जी. एक्चुअली लाइट से ही फोटोसिंथेसिस में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो आई हैव रिटन हियर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. क्लियर कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज कंपोनेंट. इन जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं इनके यूज़ क्या है. सबसे पहले सनलाइट का क्या यूज़ है? दिस प्रोवाइड एनर्जी.
विच टाइप ऑफ एनर्जी? सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द सोलर एनर्जी कन्वर्ट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द प्लांट। जो सोलर एनर्जी आ रही है दैट जस्ट कन्वर्ट इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वट एवर सनलाइट कम फ्रॉम द सन, ठीक है, दे ऑल आर नॉट, वी कैन से दे ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, मीन्स ऑल आर नॉट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, ठीक है। जैसे हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, जैसे मान लो 100% लाइट अगर आ रही है सन से, ठीक है, तो 100% लाइट इज़ नॉट एसेंशियल, नॉट जस्ट रिक्वायर्ड और नॉट वी कैन से दैट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब जो 100% लाइट आई उसका कुछ ही पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो होता है पी, उसी को बोलते हैं PAR। PAR का फुल फॉर्म नोट कर लो, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस कराए, जो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो, उस लाइट के अमाउंट को, उस लाइट के प्रोपोर्शन को, परसेंटेज को क्या बुलाते हैं हम? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और ये की वैल्यू होती है दैट इज़ 50%। मतलब जो भी सन से जो लाइट आ रही है उसका केवल 50% ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। और इस PAR का प्लांट केवल 1% यूज़ करते हैं। मतलब जो प्लांट जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दे कैन यूटिलाइज, यू कैन यूज़ ओनली 1% ऑफ दिस PAR, 1 से 2% ओनली दे कैन यूज़। सो थिंक, इमेजिन नाउ ऑल द बायोस्फीयर, मतलब हमारी जो अर्थ है, जो उस पर बायोस्फीयर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब प्लांट पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और प्लांट केवल कितने % सनलाइट यूज़ कर रहा है? 1% फॉर। तो इसी 1% सनलाइट पे पूरी जो हमारी बायोस्फीयर है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। इन 11th class you will study one lesson, photosynthesis. In that lesson you will come to know when the sunlight falls on the chlorophyll pigment, in the chloroplast, in the chlorophyll pigment, then they release electrons. तब वो electrons release करते हैं and those electron participate in the photosynthesis, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बस आप ये जानो कि सनलाइट का क्या यूज़ है। सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्साइटिंग स्टेट में ले आता है, मतलब वो एक्साइटेड कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सोलर एनर्जी है। कोई भी एनर्जी अगर आपको मिलेगी तो एक्साइट कर देगी, ठीक है। सेम नेक्स्ट कम टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। अब जो भी सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट पे पड़ेगी, ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। एक्साइट हो जाएगा तो क्या रिलीज़ करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद दीज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। यही इलेक्ट्रॉन जो है आगे जाके प्रोसीड करेंगे केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। और जो ये वाटर होता है, ठीक है, दिस वाटर स्प्लिट, ये जो वाटर होता है ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और ये स्प्लिट होके बना लेता है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है, 4H + O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब व्हेन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, तो देखो क्या क्या मिल रहा है। एक तो ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, दूसरा H मिल रहा है, H मतलब प्रोटॉन भी होता है, और क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के स्प्लिटिंग से। ये सब कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट में हो रहा है। क्लियर है? वाटर और मिनरल्स, तुम्हें पता है वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गई। वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, जिंक हैं, अदर मिनरल्स हैं जो इस पूरी केमिकल प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड विच आफ्टर रिडक्शन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही रिड्यूस होके किस में बना लेता है? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। क्लियर है? तो इस तरह से दीज रिक्वायरमेंट आर क्लियर। ये रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि सनलाइट की क्या क्या यूज़ है, क्लोरोफिल क्या करता होगा, वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ठीक है। अब थिंक दैट कंडीशन, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि वी डोंट प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट, देन वी विल नॉट गेट द ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, सल्फ़र बैक्टीरिया कुछ होते हैं, दे डोंट यूज़ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। वो वाटर का यूज़ ही नहीं करते फोटोसिंथेसिस में।
दैट्स वाई दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन, इसीलिए वो ऑक्सीजन रिलीज़ ही नहीं करते हैं। समझ में आया? और प्लांट ऑक्सीजन क्यों रिलीज़ करते हैं? बिकॉज दे यूज़ द वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि फोटोसिंथेसिस, देर आर टू केमिकल रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट सी दिस डायग्राम, इफ़ यू रिमेंबर in 9th class you studied about the cell organelle. This is which organelle is it? It is chloroplast. ये कौन सा organelle है? Chloroplast है। ठीक है। This is what? Chloroplast. और क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा डायग्राम अगर याद होगा तो ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है उसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। मतलब ये जो पार्ट जो जहाँ पे कुछ नहीं है उसी पार्ट को क्या बुलाते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है। सॉरी। ठीक है। तो ये जो बीच में पार्ट ब्लैंक दिख रहा है उसको क्या बुलाते हैं? स्ट्रोमा रीजन। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि इसमें कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, तो इन्हीं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? ग्रैना बुलाते हैं, ग्रैनम। इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? क्लोरोप्लास्ट का हो गया। क्लोरोप्लास्ट में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? ग्रैनम प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो ग्रैनम में ही देखो वाटर, देखो यहाँ पे जा रहा है, वाटर यूटिलाइज हो रहा है और रिलीज क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। लाइट को हार्वेस्ट कौन कर रहा है? हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा कौन कर रहा है? मतलब जो लाइट की हेल्प से जो एक्साइट हो रहा है वो कौन है? ग्रैनम। और आपको मैंने बताया ग्रैनम में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो जो लाइट से एनर्जी आई वो दो एनर्जी में चेंज हो जाती है। यहाँ देखो ATP लिखा है और NADPH लिखा है। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, देखो। ठीक है। तो ये जो लाइट आई सन से उसको क्लोरोफिल पिगमेंट ने, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट में जो केमिकल रिएक्शन हुई उसके हेल्प से दो प्रोडक्ट बन गए, ATP और NADPH। इन्हीं को लाइट प्रोडक्ट बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लाइट, दैट्स वाई दे आर नोन एज लाइट प्रोडक्ट। इसीलिए उनको लाइट प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब लाइट प्रोडक्ट का मतलब वो हल्के वाले नहीं, मतलब दीज आर द प्रोडक्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लाइट। ठीक है। उसके बाद देखो ATP और NADPH का यूज़ कर रहा है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था केल्विन। उन्होंने क्या बताया था कि ATP और NADPH के हेल्प से जो CO2 होता है, इस डायग्राम में देखो, ये देखो CO2 है ना, इस CO2 का रिडक्शन होता है किसमें? शुगर में। मतलब उसी CO2 को कौन रिड्यूस करने में हेल्प करता है? ATP और NADPH। और किस में चेंज हो जाता है? शुगर में चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो एक सिंपल सा ही, क्योंकि ये प्रोसेस है, क्योंकि आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, केवल थोड़ा सा ही दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया। अब फिर से समझो। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब CO2 और H2O पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि जब वाटर आता है तो वाटर से क्या रिलीज़ हो जाता है? ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। ठीक है। वाटर एंटर किया और ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई। जो लाइट आई सन से वो ग्रैनम में गई। ग्रैनम में ही क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। उसी लाइट एनर्जी की वजह से, ठीक है, और वाटर की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है। और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, ATP और NADPH। ATP तुम्हें पता है एनर्जी करेंसी है, और जो NADPH है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नोट कर लेना कहीं पे, ये क्या है? रिड्यूसिंग, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, NADPH क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये किसी भी कंपोनेंट को रिड्यूस कर सकता है। तो किसको रिड्यूस करेगा? ये CO2 को रिड्यूस करेगा। देखो CO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। किस में रिड्यूस हो रहा है? शुगर में रिड्यूस हो रहा है। तुम्हें पता है रिडक्शन मतलब क्या होता है कि जो H, ऑक्सीजन को क्या करना? हटाना, और H को ऐड करना। तो अगर आप देखो C6H12, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से केल्विन साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि CO2 का जब यूज़ होता है, ठीक है, तो CO2 का यूज़ करके प्लांट जो है, मतलब जो स्ट्रोमा रीजन है क्लोरोप्लास्ट का, वो किस में चेंज हो जाता है? शुगर में चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देखो दो स्टेप देख रहे हो, दो पार्ट देख रहे हो उसके। एक पार्ट को लाइट चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर आप दो पार्ट देखो तो एक पार्ट को तो लाइट चाहिए, बिना लाइट के प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और एक यहाँ इस पार्ट को क्या चाहिए? लाइट नहीं चाहिए, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट चाहिए। लाइट के प्रोडक्ट कौन है? ATP और NADPH। क्लियर है? तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और क्या प्रोड्यूस हो जाता है? शुगर प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्लियर? लेट्स सी।
अब देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए आपके ये देखो मैंने लिख रखा है प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज़ अ लाइट, अभी मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन क्या होता है, दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट, वो डायरेक्टली डिपेंड होगा लाइट पे। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, और सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी मतलब क्या हो गया, एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी है, और NADPH अभी मैंने बताया ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, ग्रेना रीजन में और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और तुम्हें पता है ग्रेना में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, लाइट रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओ, डार्क रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको डार्क उससे भी लिख रखा है, डार्क इंक से भी लिख रखा है। अब देखो डार्क रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट अंधेरे में चले जाते हैं, डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं कि प्लांट अच्छा लाइट छोड़ के चले गए कमरे में कहीं अंधेरे में और वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट चाहिए, इनको लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, इनको डायरेक्टली ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ द लाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, डार्क रिएक्शन बुलाते हैं। तो अगर लाइट रिएक्शन ना परफॉर्म हो तो डार्क रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। इसी डार्क रिएक्शन को केल्विन ने बताया था, और इसलिए जो जिस साइकिल में ये डार्क रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम केल्विन साइकिल, ठीक है। अब देखो बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी, प्रोडक्ट ऑफ लाइट एनर्जी जैसे ATP और NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, स्ट्रोमा रीजन में होता है क्लोरोप्लास्ट को, और ये प्रोसेस पूरी तरह से लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, डार्क रिएक्शन बुलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है फोटोसिंथेसिस में, बहुत ईजी था, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको ये नहीं फील कराना है कि ये बहुत टिपिकल है, ठीक है, वो बहुत ईजी है, इसीलिए आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी मतलब कि हम हाउ कैन वी प्रूव दैट, देखो अभी मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर बताए ना, दोज आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जो प्लांट मतलब प्लांट को रिक्वायर्ड हैं फॉर व्हाट, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उनको क्योंकि साइंस है, तो साइंस पे एक्टिविटी करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जितने भी फैक्टर हैं ये फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी हैं। तो हम बस नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है, और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए कल का, ठीक है, एंड यू विल गेट द demonstration of the activities in which we will prove that the light, chlorophyll pigment and carbon dioxide is necessary for photosynthesis। क्लियर है, ठीक है। टिल देन जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है, और ताकि आपका सिलेबस सफ़र ना करे, क्योंकि जब आपका स्कूल ओपन होगा तो आप सिलेबस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, और मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगा इस चैनल पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और लाइक बटन को केवल एक ही बार प्रेस करना है, 2 बार नहीं प्रेस करना है, ठीक है, नहीं तो अनलाइक में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू हार्ड वर्क, ठीक है, एंड हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प करिए। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ,